Hi guys, my name is Tanya and welcome back to our podcast. This is podcast number 10 after the most boring but interesting race, the Canadian Grand Prix. And today we have a very special guest with us. I hope I am that special. Rohan Gulati. You have obviously seen his content. And then we of course have the one and only bottle of the podcast, Bhumit Shah. And today I want to discuss the most boring race after Japan. Especially क्योंकि जो दो जन start कर रहे थे. I guess overall this season the number of races that have happened, a higher percentage has been either boring, dull, non-incidental, which is annoying. I don't know why all drivers are starting like good boys. खाली एक बार हुआ था जब ये ऑस्कर और मैक्स के बीच में. जब आप मैक्स के ऊपर ऐसे पेनल्टी पॉइंट्स का भंगार फोड़ दोगे तो फिर भाई को ध्यान रखना पड़ेगा ना, because he is the one who makes the big moves. Oh shit, yeah, he didn't get the 1 point. Oh Yeah. shit. उन लोगों ने पता है लास्ट पॉडकास्ट में इन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है कि वो नहीं जीते. Alonso was on fire यार, 2 बार पॉइंट्स आफ्टर. स्ट्रोल ने इतना आउट परफॉर्म किया बेचारे अलोंसो को कि मुझे लगा कि स्ट्रोल माइट नॉट बी अ बैड ड्राइवर, बट फाइनली अलोंसो परफॉर्म करा. एस्टन मार्टिन परफॉर्म कर रही है क्योंकि पूरे सीजन में तो देखा ही नहीं हमने एस्टन मार्टिन को. आई थिंक एस्टन मार्टिन का है कि एक ही कार अच्छा कर पाएगी एक वीकेंड पे, बिकॉज दूसरी कार पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. बिकॉज इट्स नॉट दैट कि अलोंसो हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग ज्यादा, लाइक देयर हैव बीन डेज वेयर लाइक कुछ मैकेनिकल इशू हो गया, कभी ब्रेक फायर पे आ गए. तो I think they have been unlucky at times, but good to see Fernando Alonso back with a good number. Like P7 feels good. But I think 3 drivers जो बहुत ही अच्छे थे in this race was Alonso, Hülkenberg, and finally Sainz. Sainz again unlucky in quali. Yeah. Extremely unlucky in quali, and usually वही होता है, quali में Sainz अगर खराब करता है तो रेस भी उसकी अच्छी नहीं जाती because of many reasons. Because the other cars midfield battle इस बार अच्छा है. Like Haas is decent, Hülkenberg Kickstauber को भी एक ठीक-ठाक कार समझ के चला रहा है. You have Aston Martin. He's pushing it. Yeah. He's pushing Sauber really well. Yeah. It was a clean race from Sainz because अभी recently हमने देखा है Sainz का कुछ ना कुछ investigation हो जाता है या कुछ ना कुछ कलेश चल रहा है भाई की जिंदगी में. So it was a good clean race. He had some overtakes which were proper sorted overtakes. Like there was no investigation on him. Like, but again, after the race, his name came under the list of people who were investigated for infringement, some or the other. But gladly. But talking on that point, if you go to see, the stars have changed. Initially, first, Stroll was in points. Stroll was performing. He was not getting any penalties. Anything. Now, and Sainz was. Yeah. And now, reverse. Sainz is back where he should be, cool, calm, clean, and Stroll impeding. Getting penalties. But बोल तो स्ट्रोल का है ही ना. मतलब हम लोग भी कभी-कभी डिस्कस करते हैं, हम बोलते हैं कोई नहीं तो स्ट्रोल तो ठोकेगा ही ठोकेगा. Like Stroll recently has not been like top level Kaleshi what I expect him to be. This time he gave one incident छोटा सा. Like Gasly को हर एक किसी साइड में ठक्कर मार दी और 10 सेकंड की पेनल्टी. But like we expect more like. Okay, now we don't have Latifi. We don't have Mazepin. We don't have Magnussen. So like Stroll becomes our only hope. And when he also doesn't deliver, it is like Stroll coming in top 10 again and again doesn't feel good na. He needs to be there behind, do some drama and ensure कि कुछ आता रहे. You see, practice sessions और qualies have been more fun. उसमें गाड़ियाँ ठोक रही है, you are seeing yellow flag, red flags, but race में पता नहीं ये लोग इतने समझदार हो रहे हैं कि मतलब नहीं हम clean racing करेंगे. What nonsense. और जिस ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं उसी ऑर्डर में मोस्टली सब खत्म करते हैं. जॉर्ज रसेल starting from pole, I think मैं वेट ही नहीं कर रहा इसके बोलने की, मैं अपना पॉइंट पहले रहा. तो जॉर्ज रसेल स्टार्टिंग फ्रॉम पोल and finishing P1 is not something everyone predicted. Even after quali, like everyone was like नहीं यार P1 से start कर रहा है या तो मैक्स जीत जाएगा या कुछ हो जाएगा. But everyone is like retaining their pole position, like retaining their original positions to finish where they start. But that also shows that somewhere down the line, Mercedes as a team didn't fuck up with the strategies also. Yeah. He was there with the tire change and everything. He still came P1. Of course, Max was there. Penalty नहीं लगता है इनको. Like for the language, like FIA यहाँ पे नहीं monitor करता. यहाँ पे सब भाई Max should come here. Like Max will feel more relaxed talking here.
Guys, he said it first. Max is going to be in this podcast. हाँ बेचारा मैक्स को अभी FIA बोल देता कि चुप हो जा, मैक्स का मूड खराब हो जाता, Edit बाहर हो हो जाता। यहाँ भाई एक्चुअली अपना मन तो मतलब मन खोल के बात Max कर Verstappen, सकते you're हो। more than welcome on this podcast. Please do join us. और then welcome भाई, मैं चली जाऊंगी मोनाको उसको शूट करने। First time we went to see the Grand Prix and we were walking towards the circuit. And I suddenly turn on the left and I see Tanya. We are a group of 10 people we were walking on. I turn left and I see Tanya and Tanya is like weeping. And I'm like, ro kyun rahi hai bhai? My Max is there. My God is there. And I'm like, arre yaar. I might feel the same when I see like not crying and I'll not call him God and all, but I'll be like Max bhai, Max bhai. Like, I'll give full Desi feels. Like Alonso को देखो मैं चाचा चिल्ला दूंगा and he'll be like what? Bro, we saw Alonso. होटल के बाहर। No, हाँ, not on the track. Did you shout chacha? That is where you are missing out on. No, but I'll tell you, it was that moment where I think something had happened in the qualies and he was not able to perform. He was very pissed. Like शक्ल से ऐसे दिख रहा था कि भाई अभी उसको बोला तो मार देगा वो। और रात के 10:30 बज रहे थे यार, तो मुझसे जाके बात भी नहीं कर पा रहे थे और मेरे को ऐसे एकदम शर्म भी आ रही थी। उसका दोस्त था हमारे साथ, तो बोलते चल चल चल, I'm like मैं नहीं जा रही। In that case you have to because कोई दूसरा shoot कर रहा होगा and next day you will be on a reel. Like Indian fans are embarrassment. Lesson learned, guys. Whenever I go to a race weekend, अगर ऐसा कुछ I'll होता तो behave. we would have commented only अबे दारू पी रहा था। But we were talking about George turn 1 and Max not fighting. But I think you have to see कि जॉर्ज का स्टार्ट भी अच्छा था. Like he had a good launch, good reaction time, and Max को वो opportunity अगर मिलती तो it's not that कि वो penalty point की tension लेता and he would not go. It's just that he did not take that risk from his own. Like उसने देखा कि जॉर्ज का अच्छा स्टार्ट है एंड पीछे से किमी और ये सब भी ऑस्कर का भी ड्रामा चल रहा था वेयर किमी ओवरटोक ऑस्कर. सो लाइक लैप 1 में वो डेंजर रहता है एंड कनाडा का टर्न 1 बहुत जल्दी आ जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. एंड प्रॉब्लम क्या है ना, जॉर्ज बंदा टेढ़ा है, उसको हल्का सा भी टच हो जाए ना या कुछ भी हो जाए वो गाड़ी ऐसे घुमा के कर देगा, अरे 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 ये देखो 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 चेक करो चेक करो चेक करो. तो वो ना बंदा थोड़ा है समझदार है था ना, तो मैक्स को आई थिंक अगर यही ऑस्कर हो ना तो मैक्स को डर नहीं लगेगा क्योंकि उसे पता है कि ये हल्ला हुल्ला नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है. पर ये जॉर्ज और लैंडो के साथ ना मैक्स को लगता है कि भाई ये दोनों बहुत रोते हैं रेडियो पे, हल्का सा कुछ आएगा जॉर्ज कहेगा देखो मैक्स ने क्या किया, एंड ब्रिटिश है FIA कहेगा अरे मेरा ब्रिटिश लड़के को क्या किया, इसको 5 सेकंड का पेनल्टी डालो और एक पेनल्टी पॉइंट दो. तो आई थिंक मैक्स नीडेड टू बी केयरफुल. सो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है जो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं. प्लस आई थिंक चैंपियनशिप भी इतनी वैसी है ना, अभी वो 3rd पोजीशन पे है कि अगर DNF हो जाता तो वो और भी नीचे आता. मैक्स आई थिंक कुड नॉट अफोर्ड अ DNF इन टर्म्स ऑफ चैंपियनशिप आल्सो बिकॉज हम लोग शायद काउंट आउट कर रहे हो, बट मैक्स इन हिज माइंड ही इज इन द चैंपियनशिप रेस. लाइक as like someone like Max, he would not count himself out. And still 10 races down. Yeah. There are more to go. Because of Oscar versus Lando का fight आपस में भी like वो championship fight on रहेगी. Because वहाँ पे अभी like 40-50 points is nothing यार, 2 races की बात होती है. And the thing is he knew कि Mars had a very good car this weekend. Like on pace difficult था. Like अगर वो pit stop में कुछ गलती कर देते तो chance, and pit stops are very good for all the teams this time. If 2.2. Yeah, Overall everyone 2.2, 2.3, 2.4. So, Good, very good ones. So yeah, they were waiting for something to happen, did not happen, and I think because he like उसे किमी से भी बचना था. If we saw बहुत बार किमी was very close to overtaking Verstappen. So I think overall it was a good race for Verstappen and Red Bull smartly played, and likewise Mercedes did what they had to. But good to see Kimi Antonelli on podium. हम लोग कब से बात कर रहे थे कि किमी आएगा पोडियम पे इस साल आएगा और इतना जल्दी आ गया. I did not expect. And seeing McLarens who've been like one of those perfect cars and great pace and champion drivers behind you and everything, and there's a champion driver ahead of you and everything, he still managed to get that podium, which hats off to him. And then बाकी की रेस तो एकदम पगाव थी. मतलब मैं तो मुझे एकदम ही नींद आ गई थी. After the 3rd या 2nd pit stop I knew कि यही पोडियम होने वाला है, यही पे खत्म होने वाला है. And then came the best part of the race. आ गया Lando! वो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्टिंग के लैप से लैप 67 पे पहुंच भी चुके हैं. पीछे कुछ था ही नहीं. Honestly, driver of the day पता है किसको देना चाहिए था? मेरे हिसाब से निको हल्केनबर्ग. हाँ, किसको मिला?
Kimi. ड्राइवर ऑफ द डे कब फेयर रहा है, मतलब इस बार के लिए किमी फिर भी आई वुड से गुड, Yeah. बट ड्राइवर ऑफ द डे कब इज अ गुड अवार्ड. At least there was some action Hulkenberg was getting. He was overtaking, going back, overtaking, coming back. Good. There was also Sainz who was doing a little bit. द इशू इज ब्रॉडकास्ट में ना पीछे का इतना दिखाते नहीं है, हाँ. एंड जेन्युइनली पीछे की फाइट इज द वन वेयर यू सी yeah, एक्शन, yeah. बिकॉज टॉप 5-6 में तो कुछ होता ही नहीं है. 7 to 10 की एक्चुअली रेस, हर रेस इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज देयर एनीवन कैन फिनिश. लाइक विलियम्स है, हास है, किक्सॉबर है, रेसिंग बुल्स है. इस बार लाइक हजार फॉर अ चेंज वाज नॉट इन टॉप 10. एंड लाइक जैसे मैं लाइक रील में भी बात कर रहा था, गुड फॉर हिम कि रेड बुल जैसी उस पर नजर लगा के बैठी है, ही इज आउट ऑफ पॉइंट्स. तो रेड बुल कहे कि नहीं अभी लड़का नहीं, अभी बात नहीं है इसमें. गुड फॉर हिम. आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर Slawson, Lawson बनेगा. कोई हालत आई नहीं थिंक दैट लाइक आज की डेट में भी अगर यूकी रेसिंग बुल्स में होता है, ही वुड बी कंसिस्टेंटली गिविंग टॉप 10. लाइक हजार की तरह वो 8-9 आ रहा होता. आई थिंक इज दैट सेकंड रेड बुल सीट, लाइक दिस सीट जो यहाँ भाई कांस्टेंट है. यहाँ कुछ भी बदल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, देखो बैठना इधर बैठ जा. मेरे को ही बुरा लग गया यार, वो तो बस बाय चांस हो गया था. ऑस्कर एंड लैंडो क्रैश. मतलब लैंडो, एक तो ना आई फील लैंडो हैड मोर पेस देन ऑस्कर. एट वन पॉइंट मेरे को लगा कि शायद लैंडो विल ओवरटेक ऑस्कर, कि फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने कहाँ से वो जगह देखी लेफ्ट पे. He should have waited. There were still 4 or 5 laps to go, roughly, and he would have gotten a chance. Yes, his pace was also there, so he could have easily overtaken Piastri because gap nahi tha in the next DRS or next DRS, or probably in a span of 2 laps, he would have got a chance for a turn or a curve. But that was where also I felt Piastri thought very well, where Piastri understood that maybe slightly on pace I am below. He used his strategy, the lines that he was taking at the curves and everything, and late braking helped him no matter what. So he was smart out there. Lando's error and misjudgment got him no points. That now creates a gap between Piastri and Lando. And Verstappen can take advantage of it. Russell can take advantage of it. एंड लाइक इट वाज वेरी ऑब्वियस. मतलब उसमें मतलब लाइक जो बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो रिप्ले देख रहा है, जो ड्राइवर है, इवन ऑस्कर वाज लाइक पता है उसको कि भाई ने गलती की है. उससे पहले मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, उसको भी पता था. गुड थिंग इज ऑस्कर्स कार डिड नॉट सफर अ डैमेज बिकॉज़ दैट वुड हैव बीन लाइक big एंड अगेन blow. वो फिर ऑस्कर के दिमाग में भी फिर वो गुस्सा और वो, बिकॉज ऑस्कर इज नॉट समवन हु शोज इट, एंड इस बार भी दिखाया नहीं ज्यादा. बट अगर ऑस्कर का भी डीएनएफ हो जाता, देन ही वुड हैव फेल्ट इट कि भाई मेरे there were guaranteed chances points because when the front wing, when you Yeah. see the play, when the front wing blasted out there and he hit the curb and the wall, the debris were actually, and the front wing was actually hitting and impacting on Piastri's car, the tire, right side of the tire. I'm like puncture हो Yeah, सकता है. बहुत इजीली हो सकता था. एंड आई थिंक लैंडो का इमीडिएट रिएक्शन वो डर वाला इसीलिए भी था, माय फॉल्ट, बिकॉज ही वाज अफ्रेड कि लाइक ऑस्कर की कार को भी Correct. तो कुछ नहीं हो गया, बिकॉज ही वुड हैव फेल्ट लाइक बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता वो. तो आई थिंक गुड फॉर मैक्लेरन की ऑस्कर का तो भाई वो बॉन्डिंग भी अभी बरकरार रहेगी, बिकॉज लैंडो अपोलोजाइज, ऑस्कर एक्सेप्टेड एंड एवरीथिंग वेंट वेल. पर जब दोनों का डीएनएफ हो जाता है ना, तो वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना भी इट्स नॉट दैट इजी. Lando's car, when it hit Piastri's car, I felt Piastri's car में थोड़ा extra ज़्यादा pace आ गया था, फिर अचानक से yellow flag आ गया, वो सीधा zoom. इट वॉज अ स्ट्रेटेजी. लाइक ऑस्कर किमी को कैच नहीं कर पाया, तो लैंडो ने कहा रुक भाई मैं धक्का देता हूँ ना तुझे बढ़िया जा किमी तक. पर उसमें हुआ क्या कि लैंडो का फ्रंट विंग चला गया. वो उन्होंने इमेजिन लाइक दे डिडंट फोरसी कि ऐसा भी हो सकता है. लाइक तो एक्चुअली लैंडो वाज ट्राइंग टू प्ले अ टीम गेम. इट वाज पार्ट ऑफ पपाया रूल्स. वो एक धक्का, एक पुश चाहिए था, जो मोमेंटम चाहिए था. आई थिंक जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, इनर्शिया, अगर आप इनर्शिया समझते हो तो ही वाज ट्राइंग टू इनर्जी एक्चुअली में कुछ होता है क्या? मेरे को लगा ऐसे ही ऐसे. लॉ ऑफ इनर्शिया रहता है ना रे. आई होप मेरी कोई भी स्कूल की टीचर ना देख रही हो, बोलेगी तान है. जमीन पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया तो फिर मेरे पे भी चढ़ जाएंगे लोग कि सारे अनपढ़ आ रहे हो. I want to know who you think is McLaren's number 1 driver. Shut up. I think it is right now Oscar Piastri. ये पॉडकास्ट में these two boys think Lando is the best driver on the grid after Hamilton. ये लोग दोनों हैमिल्टन के फैन थे और उनको लगता है हैमिल्टन तो गोट है ही है. उनको लगता है उसने तो 8 चैंपियनशिप जीत ही ली है, शायद 9 भी जीत चुका है वो, और उसको लगता है कि लैंडो इज द नंबर 1 ड्राइवर ऑफ McLaren. बट
Now, do you also agree that Oscar is number one driver of McLaren? At the moment this season, now it seems tilting towards Piastri. But we have to still mention that at the moment, it is a very, because before the season it was Lando. Very delicate situation Yeah. again with the calculation of the points. See, this is the race where Lando has no points, no score. Yeah. If he bucks up and performs well, but Piastri keeps coming probably second, third in a couple of races, then again they are very tight and very close. Yeah. So, and Lando wins one or two really well, then it will change. I'm telling you, Yeah, it's going to be till the last moment. से हमने बहुत सारों से बहुत चैंपियनशिप फाइट्स देखी है एंड ये 40-50 मतलब आज की डेट में जैसा पॉइंट सिस्टम है दिस काइंड ऑफ गैप कैन इजीली बी लाइक ऑस्कर का गुड थिंग इज ही हैज बीन कंसिस्टेंट लाइक हिज बैड डे वाज P4 Yeah. दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज लैंडो की प्रॉब्लम क्या है हिज बैड डेज आर DNF सो लास्ट सीजन भी क्या हो रहा था मैक्स के बैड डेज वर लाइक P3, P4, P5 because his good days were always P1 because that's what he did in the start of the season. इस बार McLaren वो कर नहीं पाई consistently. So that's why you just cannot rule out like a Verstappen also putting so much pressure on them. With Mercedes also doing good. So इनके good days भी शायद P1 हमेशा नहीं ला रहे McLaren के. And अगर क्या हुआ लैंडो के अगर good days आने लगे समझ रहे हो अब बुरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से लैंडो के अगर अच्छे दिन आने लगे वो P1 लाने लगा ऑस्कर की 2 DNF एंड इट्स गेम ओवर ना लाइक दोबारा से चैंपियनशिप फाइट Next 5 races are going to be very crucial. Yeah. In those 5 races, we'll understand either it's Piastri, it's Lando, or none of them and Verstappen. बट ऑनेस्टली मुझे लगता है इन 5 रेसेस में भी शायद हमें क्लैरिटी ना मिले आई थिंक दिस इज गोइंग डाउन द Till Abu Dhabi? लाइक ये मे बी है ना? आई Or थिंक I wouldn't say Abu Dhabi. I would say till Singapore. मे बी हाँ Till Singapore you'll come to. या मे बी आबू धाबी तक ऐसा हो सकता है 3 की जगह 2 रह जाए हाँ. बट मुझे लग रहा है कि डिसाइड तो आबू धाबी में ही होगी बिकॉज इट विल बी विद इन दैट 1 DNF Correct. के उसमें कि आबू धाबी में अगर ऑस्कर का DNF हुआ लैंडो P3 आया और मैक्स P1 आया तो मैक्स इज विनिंग इट इस टाइप का सिनेरियो अगर मिलता है तो आई थिंक दैट इज समथिंग दिस सीजन डिजर्व्स उस टाइप का एंडिंग एंड आई वुड वांट कि जॉर्ज रसल भी किसी तरह हो कि अगर मैक्स ऑस्कर और लैंडो का DNF हो जाता है और जॉर्ज P1 आ रहा है तो जॉर्ज और भाई आई वुड नॉट माइंड जॉर्ज विनिंग द चैंपियनशिप लाइक वो बंदा ना मुझे टेढ़ा लगता है ठीक है और अगर 3 DNF के बाद उसका अगर चैंपियनशिप मिल रही है तो लाइक ओसामा बिन रसल will be known as the greatest ever champion. So I feel this season has lot to give. The Sundays are not great, but Saturdays we are getting that कुछ भी हो जाए. Like Saturdays को कुछ भी हो रहा है. Like इस बार no one would expect George to take pole position out of nowhere. McLaren मतलब एकदम से like they went down. Like Lando qualified P7. Yeah. मतलब like someone who we think like is probably the like championship contender जो ऑस्कर को एक्चुअली कर देगा ओवरटेक ऐसा कहते हैं बट नहीं हो पा रहा ना P7 इन क्वाली इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ स्पेशली लाइक कनाडा जैसे ट्रैक में जहां आपको पता है कि इतना इजी नहीं होगा ओवरटेक करना बट इतना मुश्किल होगा ये तो मुझे नहीं पता था लैंडो को पेनल्टी कैसे नहीं मिली यार 5 सेकंड की पेनल्टी that too added like in his classification time doesn't affect his current race doesn't affect his next race FIA good job वहां मेरा बेचारा यूकी पूकी प्रैक्टिस सेशन में एक छोटा सा बंदे ने ऑस्कर को हल्का सा ओवरटेक कर दिया उसमें बेचारे को 10 प्लेस का ग्रेड पेनल्टी और 2 सुपर लाइसेंस के पेनल्टी पॉइंट्स रेड बुल को दुखता नहीं है ये लैंडो ब्रिटिश बायस तो है ना देखो रेफरेंस पॉइंट ऑस्कर पे Of course, yes. ठीक है प्रैक्टिस सेशन में एक बंदा उसको ओवरटेक कर रहा है बिकॉज उसे लग रहा है डेबरी वेबरी से बच जाऊं मैं उसको आपने 10 प्लेस का ग्रेड पेनल्टी और 2 पेनल्टी पॉइंट्स दूसरा रेफरेंस पॉइंट अगेन ऑस्कर पे आस्क्ड दिस इज रेस टाइम पीछे से बंदे ने ठोक दिया 5 सेकंड का पेनल्टी क्यूट सा जो उसकी रेस को भी अफेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज रेस तो खत्म है नो पेनल्टी पॉइंट्स ऑन ए सुपर लाइसेंस व्हाट इज दिस नॉनसेंस प्लीज एक्सप्लेन आप ही बताओ और कुछ घटिया बोला ना तो फिर रॉन इज गोइंग टू गिव यू द फक ऑफ अवार्ड But you need to give that to FIA, no? Yeah, again, this is true. Like nothing against the drivers in this case. It is solely on FIA. FIA is also doing that. If you go to see, if George also impedes or George also creates an issue, and उसने किया येलो फ्लैग में वो बात करेंगे but again उसको नहीं मिला ना. कितना हरामी है
कितना मीन है मैक्स वर्स्टैपन प्लीज आओ हमारे साथ बातें करो, देखो कितना प्यारा पारिवारिक माहौल है। जॉर्ज ब्रेक टेस्ट कर रहा था यार, वर्स्टैपन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो कुछ इशू होगा यार। That was very cheeky यार, that was too mean what he did। और अगर उसकी मैक्स आगे भाई और एकदम स्कूल वाइटर की तरह ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। Max का heartbeat at that particular time would be up because he's like, oh shit, under the safety car, I am overtaking for a split second. I think that Max would DNF him. I think he would crash into him that if I'm not racing in one race, you are not getting a P1. अरे जब पहले एक बार लुइस और मैक्स का हुआ था, जब मैक्स धीरे हो गया था और लुइस ने ठोक दिया था, अगर मैक्स रैकेट जॉर्ज पे ठोक दिया था, दोनों डीएनएफ हो जाते, किमी एंटोनेली रेस विनर हो जाता भाई। First winner, first आता वो। पर आई थिंक P5 वाज लेक्लेर्क ना, तो लेक्लेर्क का भी पोडियम हो जाता भाई, इसी बहाने फरारी वालों को भी कुछ। मेरे को लगता है फरारी इज कमिंग इन लक ओनली, मतलब उनका प्लान बी प्लान सी से ही माहौल नहीं हट रहा। Oh, it's not their plan B or C. Their plan is 6-7, 6-7, 6-7. Yeah, I was just seeing a graphic, आज एक किसी ने रील बनाई थी 9-10 7-8 4-5 6-7 9-10। जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे। हाँ। करण अर्जुन है वो। गुड थिंग इज कि लाइक काफी लोग सोच रहे थे कि हैमिल्टन माइट बी टू फार ऑफ लेक्लर्क, सो दैट इज नॉट हैपनिंग, बट दे बोथ आर टू फार ऑफ एवरीवन एल्स, दैट इज सैड। That is the midfield team only now. I don't think it's a top 3 team. वो भी because Red Bull की गाड़ी इतनी खराब है। हाँ, लीडर ऑफ मिडफील्ड, लीडर ऑफ मिडफील्ड तो वैसे आई थिंक रेड बुल है अपना बेचारा, क्योंकि सेकंड कार तो परफॉर्म ही नहीं कर रही। बट व्हाट हैपेंड विद फरारी अगेन, दोनों ड्राइवर्स, एक ने तो मतलब ग्राउंड हॉक को ही मार दिया वीगन होके। Goat. 2 seconds of silence for the ground. बकरी ने ग्राउंड हॉक को मार दिया। आई थिंक इस पे ये बनता है। लास्ट टाइम का जोक बताओगे द बकरी ग्राउंड हॉक जोक। बट क्या प्रॉब्लम हो रही है यार फरारी में, मतलब जब चार्ल्स बोल रहा है दैट उसको नहीं करने का पिट, तो भी पिट कराया, और फिर वो पूछ रहा है क्यों पिट किया, तो बोलता है हम जा रहे प्लान बी के साथ ही है। तो या तो फरारी को उनके ड्राइवर्स पसंद नहीं है और वो लोग सिर्फ टाइम पास में रेस कर रहे हैं, या तो फिर वो लोग सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम ड्राइवर की सुनेंगे बट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। Their plan B is nothing. They never have a plan B. When something goes wrong and the driver is giving back to them like what you did was wrong, or giving them a feedback, and they understand and realize, oh, what we did was wrong, they're like, it's plan B. But they don't have anything as plan B or plan C. They at that particular line sit down with pen and paper. I'm like, हाँ अब क्या कर सकते हैं बताओ। बट मेरे को लगता है अगर साइंस चार्ल्स की जगह पे होता तो वो नहीं लेता है। आई थिंक दैट इज वेयर दे आर मिसिंग, उनका मेन इंजीनियर इस टाइम मिसिंग है और वो विलियम्स की गाड़ी चला रहा है। बिकॉज कार्लोस साइंस वाज द मैन यार, जो चीजें डिसाइड करता था उस गाड़ी में। And I think Charles Leclerc now needs to take that call कि he used to get out from that good boy image. Yeah, and it's fine यार, कभी कभार उसने गलत कॉल ली, उसकी रेस खराब हुई तो कोई बात नहीं। लाइक हाँ, अभी क्या हो रहा है, he's like कि I might not like, मैं वो सारा ब्लेम मेरे पे नहीं आएगा, like it's a team call, बट कुछ फायदा नहीं हो रहा ना यार। If as a driver you feel कि समथिंग कैन गो राइट इफ आई टेक दिस कॉल, डू इट। ज्यादा ज्यादा क्या खराब होगा यार, P6 की P5 की जगह P8 हो जाओगे यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और शायद P1 आ जाओ उस कॉल की। एग्जैक्टली, देयर इज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ अ P1 आल्सो। सो आई थिंक एट टाइम्स नाउ लाइक लेक्लर्क नीड्स टू टेक दैट कॉल। आई थिंक फरारी के हर ड्राइवर्स ने लाइक सेबास्टियन वेटल, शूमाकर, सबने चैंपियनशिप जीती है बिकॉज उन्होंने स्टैंड लिया है अपने लिए। एंड नॉट जस्ट फरारी, ऑनेस्टली हर ड्राइवर को, लाइक मैक्स को भी देखो, ही टेक्स दैट कॉल कभी कभी यार। हैमिल्टन मर्सिडीज में बोलता था कि भाई कोई चीज मुझे नहीं ठीक लग रही, भले उसको, इनका तो ट्रस्ट भी था टीम में, लेक्लर्क को तो टीम में ट्रस्ट भी नहीं है बेचारा, फिर भी मानता रहता है उनकी बात। तो आई थिंक इट्स टाइम कि जब उसे लगे कि कुछ बहुत सही नहीं जा रहा, लाइक कि नहीं गाइस मैं नहीं आ रहा पिट में, क्या कर लेंगे। Yeah, he should have just be like, no, that's it. गाइस मैं अभी नहीं आ रहा, मैं 10 लैप बाद आऊंगा। ये थोड़ी ना 10 लैप बाद आएगा और टायर कह चेंज देगा कि नहीं नहीं 10 लैप पहले नहीं आया, लग भाई हम बुरा मान गए, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं टायर नहीं बदलूंगा। बदल देंगे वो टायर 10 लैप बाद। एंड आई थिंक वो रिस्क एंड स्पेशली नाउ तो फरारी नीड्स टू टेक दोस कॉल्स, बिकॉज वो येलो फ्लैग्स, सेफ्टी कार्स आर देयर ओनली लाइक वे आउट टू गेट अ पोडियम। तो वो वेटिंग गेम अगर करना पड़ता है तो करो, लाइक आप यू जस्ट कांट गो एवरी वीकेंड लाइक दिस एंड कम विद अ P5 P6 P7। आई एग्री, बट आई थिंक अगर चार्ल्स को बनना है चैंपियन, आइदर ही हैज टू टेक अ स्टैंड और ही हैज टू लीव फरारी।
नहीं तो मुझे नहीं लगता वो चैंपियन बनने वाला है. And needs to learn taking a stand in this season because next season में time नहीं मिलेगा stand सीखने का. True. And I think all drivers are so this ना अभी मतलब किमी देख लो, जॉर्ज देख लो यार, जॉर्ज actually is very good this season. मतलब वो टॉलरेबल तो हो गया है. हर ड्राइवर को ये सीजन जो अभी चैंपियनशिप रेस में नहीं है, they need to learn how to become a champion. Sainz being in Williams is trying to pull Williams ahead. Nico Hülkenberg as a single individual trying to pull Sauber ahead. Hajar performing in some races, one or two races bad luck, okay, forgive it. Then you see stagnancy, like Ferrari stagnant. Ferrari is not doing anything. Alpine is also not doing much. Alpine की क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप पॉइंट लाओ, वो नहीं ला पा रहे. फरारी से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप पोडियम्स लाओ, आप नहीं ला पा रहे. सो दैट्स व्हाई आई फील ये Yes. दोनों आर द Are स्टैंड just- आउट. yeah. एंड इट इज नॉट अ गुड क्लब यार. अगर आप फरारी को बोलो कि आप एल्पीन के क्लब में चल रहे हो, या आप एल्पीन को बोलो कि आप फरारी के क्लब में चल, दोनों के लिए ही बेइज्जती है इन द करंट पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं, वी डोंट वांट टू लाइक बी इन द सेम क्लब. Do you think कि आजकल जो लुइस के साथ हो रहा है, do you think Lewis is going to retire from Ferrari? कि वो 1-2 साल और रहेगा? देयर इज नो वे वो इस सीजन आया रिटायर होने के लिए. लाइक नेक्स्ट सीजन इज द मेन सीजन टू बी ऑनेस्ट. ये सीजन वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेटलिंग इन एंड सी and understanding the Ferrari trauma, the rules, the principles of what it feels to be in Ferrari. It's like 2026 with the new car, new upgrades, new Yeah. things, everything. That will be the year where he'll decide, because with Yeah. that also, with his input that he's giving this Yeah. particular season, Yeah. if he's unable to perform, then he knows it's his time. But what if Ferrari next year with new rules gets even more confused? Exactly 1 year later on this date, we might be in a better state to answer the Lewis question, because we would know कि क्या Ferrari ने गाड़ी बनाई है and क्या हो रहा है But Hamilton also, के that's what I'm साथ. saying. It is going to be confusing for us also right now to predict, because if you see Ferrari right now the way they are, we don't know if they're going to be more confused or more consistent or more better in the next season. But if you go to see Hamilton's record, he joins a particular racing team and the next year he's the champion. This podcast the same cheese board, same cheese board. And you just cannot like someone like देख ऐसे athletes ना बहुत कम आते हैं किसी भी sport में. Like there's like a Messi, Ronaldo in football, there's like Federer, Nadal, Djokovic in tennis, and then there is like the likes of Schumacher, Vettel, Hamilton and all. So इन लोगों को आप कभी हल्के में नहीं ले सकते हो. Like Vettel को भी हम लोग लाइक काउंट आउट करते थे ना एक टाइम पे, बट फरारी में ही वाज ऑलवेज देयर. मतलब स्टार्ट कुछ सालों में लाइक ही वाज देयर टू फाइट फॉर द चैंपियनशिप, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग इट आल्सो. जस्ट मिस्ड आउट, दैट इज अनफॉर्चुनेट. बट आई थिंक एस्टन मार्टिन तो देन इट वाज लाइक अ गॉन स्टोरी, बट स्टिल वहां पे भी पोडियम मिले. Yes. ठीक है. सेम फॉर अलोंसो एंड सेम फॉर हैमिल्टन इन अ फरारी. Like he will definitely be in the championship race. I'm guaranteeing this, and I personally think कि Ferrari will build a championship winning car next year. Like they are Ferrari. See, they are Ferrari, and इस टाइप के रेगुलेशन चेंज बहुत सालों बाद आ रहे हैं. इतने काइंड ऑफ चेंजेस. Correct. Like someone like a Ferrari, हम कितना भी मजाक बना ले, like they, and again under Fred भाई थोड़ी सी you can see some kind of improvements. ठीक है, इस बार चीजें are not Slow. going as great, but he means business, and I personally have a feeling कि दोनों Hamilton और Leclerc like will be in the championship race Because next also season. the biggest difference is with this season, even though there are upgrades to the parts and everything, but they are also still coming in a very pre-molded car. It's a pre-formed Yeah, car. yeah. Next season, it is a car built from scratch with their input, with their way. So it can be a possibility of how Hamilton was in Mercedes and the car, and Hamilton bonded. Yeah. Next season can be a possibility. I'm not saying it is going to happen, but a possibility where some magic like that happens and Ferrari actually becomes that, you know, that racing horse, Yeah. crosses the lines multiple times and becomes one of the contenders to be there. Yeah. It's a big time possibility. Let's hope यार. मुझे तो लगा कि इस साल ही मैं मैक्स और लुइस का फाइट देखूंगी, और इस साल तो मतलब लुइस है ही नहीं. इस साल एक बार देखा था ना जब मैक्स एक बार लुइस को ओवरलैप कर रहा था तो वही फाइट देखने को मिल रहा है. आई थिंक लुइस नोज अभी कि नहीं होने वाला है, एंड लुइस इज नॉट समवन जो फालतू में एक्स्ट्रा उम्मीदें लगाता है. ही इज वेरी कि भाई
कि भाई इस हफ्ते नको उम्मीद रखो मेरे से, गाड़ी एकदम फुद्दू है, तो वो पहले बोल देता है. He's practical and vocal. Yeah. He says it only. Yeah. कि Baba, this was the scenario. And also with the And that is the advantage also, sorry to cut, कि वो इतना vocal है ना, तो that is the vocality which Ferrari needs in that Exactly. building of a car. अगर लेक्लर्क वो इनपुट ज्यादा नहीं दे रहा, तो Lewis will push Leclerc also to do it. Give it. I think as a team, like Leclerc and Lewis, like as a driver, like one of the most talented on the grid as a team, most experienced on the grid. So I feel जो ड्राइवर इनपुट अगले साल की गाड़ी के लिए होंगे ना, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले. रेड बुल बनेगी मैक्स के सहारे, दूसरा ड्राइवर का कोई इनपुट नहीं ले रहा, ठीक है. मर्सिडीज भी काफी न्यू है, रसेल इज कंसिस्टेंट, दैट इज वन थिंग, बट वी डोंट नो अभी कि उसकी इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, कितना वो गाड़ी को समझता है. किमी तो अभी नया है. you can't expect that. या मैक्लारेन ऑल्सो, भले दोनों ड्राइवर्स बहुत टैलेंटेड है, अभी इन्होंने इंजीनियरिंग मास्टर क्लास दिखा दी है, बट उन दोनों के इनपुट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ कैसी गाड़ी बनेगी, तो अगर आप वैसे कंपेयर कर रहे हो, इट्स अ क्लियर एडवांटेज टू फरारी एंड टू सम एक्सटेंट एस्टन मार्टिन, बिकॉज वहाँ न्यू ही बैठा है, तो दैट न्यू. हाँ, तो वो अलोंसो न्यू. Imagine having a whole next season with battle between Hamilton and Alonso. या That will be kick मतलब हर रेस में P1 P2 P1 P2 P1 P2 और P3 के लिए लोग झड़ रहे हैं कि भाई मैक्स भाई कह रहे हैं एक P3 मुझे भी दे दो. Russell बोलता P3 तो मेरा है. P3 तो मेरा है, मतलब कह रही एक तो मेरा भी बनता है. तो या and it is like अगला साल that is like going to be huge. Last segment, what is the Austria prediction? I'll give it to Max. Why? What happened? Because of one of the biggest factors is he was calm this race, but that aggression, knowing Max Verstappen, understanding him, how he performs, has to come out. So it will be the next race, definitely. Max, Piastri, and I want to see Leclerc third. I think McLaren will bounce back. It will be a P1 P2 for McLaren. Lando Norris to take the victory. Lando boy, come on. Lando 1, Oscar 2, Max 3. Max 1, Oscar 2, Kimi 3. Chalo, anyway, thank you so much for watching this episode, and thank you Rohan for coming today. We hope to see you soon again. Yeah. Okay, thanks guys. See you. यार मेरे को पता है कब से फीलिंग आ रही है that it didn't record, but it recorded in 4K.